ہم ہر سال آزادی کا جشن مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے جو ہم کبھی خود سے نہیں پوچھتے۔ اگر آزادی کا مطلب زنجیروں سے آزاد ہونا ہے تو پھر پاکستان میں لاکھوں لوگ آج بھی غلام کیوں ہیں؟ کیوں ایک بچہ جو اسکول جانے کے بجائے اینٹوں کے بٹے پر کام کر رہا ہے؟ کیوں ایک معمولی سا قرض جو پوری زندگی کا ایک قید بن جاتا ہے؟ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 2025 کے ایک رپورٹ کا کہنا ہے تقریباً 45 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس غلام مزدوری میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سسٹم کے اندر خاندان نسل در نسل غلامی کرتے ہیں اور ان کے بچے 8 سال سے لے کر 10 سال کی عمر میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ نظام کے اندر ایک اہم کردار جمعدار کا بھی ہوتا ہے۔ جمعدار جو کہ اس نظام کے اندر بہت ہی خاص مانا جاتا ہے۔ جمعدار لوگوں کو لے آ کر اس سسٹم کے اندر بھرتی کرتا ہے اور پھر ان سے کمیشن لیتا ہے اور پھر ان مالکان کے کہنے پر ان مزدوروں پر تشدد بھی کرتا ہے۔ پولیس کو نجی جیلوں میں رکھا جاتا ہے، وہ گھر نہیں جا سکتے، عدالت تک نہیں پہنچ سکتے، اور دوسری جانب سندھ میں وڈیرے سرپرستی کے نام پر مزید ظلم کرتے ہیں۔ یہ سب سے کمزور غریب ترین وہ دیہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں رکھتے اور جن کے بچے غلامی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ملک عورتیں ذہنی مسائل اور تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اب ہمارا کوئی دھنی نہ پوسائیں، کنواری چھوکری زمینداروں را پیٹرا اولاد تھا تو اما اتو ظلم تھے چکو میں بھی تو اس میں سے 800 ملتا ہے ان میں سے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی غلامی کی جو غیر قانونی ہے لیکن پھر بھی ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔ تصور کرو کہ تمہارا خاندان ایک چھوٹے سے قرضے کی وجہ سے کسی کے یہاں غلام بن جائے۔ پاکستان میں غلام مزدوری بھی بالکل ایسا ہی ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو اپنی زنجیروں میں جکڑے رکھتا ہے۔ غریب لوگ جو زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا پیشگی یعنی کچھ ایڈوانس پیسے لیتے ہیں، لیکن یہ قرض سود کی اونچی شرحوں، منمانی کٹوتیوں اور زبردستی کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر بھی کام کرے یہ تب بھی ختم نہیں ہو پاتا۔ آخرکار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے خاندان نسل در نسل غلامی کے چکی میں پستے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر گاؤں کے علاقوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں، جہاں کسان اینٹوں کے بٹے پر کام کرنے والے اور دیگر غریب مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام، غربت کی دلدل، قوانین کی کمزوری اس ظلم کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ واک فری کی گلوبل سلیوری انڈیکس 2025 کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 23 لاکھ سے بھی زیادہ افراد اس غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 2025 کے ایک رپورٹ کا کہنا ہے تقریباً 45 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس غلام مزدوری میں جکڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سندھ اور پنجاب کے ہیں۔ یہ انسانی حقوق اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، لیکن آج بھی یہ نظام چل رہا ہے۔ بچے، عورتیں اور مذہبی اقلیتیں سب سے زیادہ اس سسٹم میں متاثر ہوتی ہیں۔ وہ اسکول، صحت اور آزادی سے دور رہ جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں معاشی بحران، 2022 کے سیلاب اور 2025 اور 26 کی مہنگائی نے غریبوں کو مزید قرضے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ آخرکار اس غلامی میں پھنس کیسے جاتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے غربت اور مہنگائی۔ جیسا کہ 2022 میں آنے والا سیلاب اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کی مہنگائی نے غریبوں کو مزید قرضے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں بلکہ آج کی ایک زندہ حقیقت ہے جو فوری قدم اٹھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ متاثرین سے ہمدردی کرو، مجرموں کو سزا دو اور اس کے لیے ایک ایسے حل نکالو تو اس غلامی کو جڑ سے ختم کر دے۔ پاکستان میں غلام مزدوروں کی جڑیں آج کی نہیں ہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے انگریز دور سے ملتی ہیں۔ اس وقت کے غریب اور مزدور زمینداروں یا ساہوکاروں سے کچھ پیسے لے کر اپنے آپ کو یعنی اپنی محنت کو گروی رکھتے تھے۔ یہ نظام پیشگی یعنی ایڈوانس میں رقم لینا اور بٹائی جیسے طریقوں سے چلتا تھا جو سندھ اور پنجاب کے گاؤں میں اور نچلی ذاتوں اور اقلیتوں کو اکثر اپنی جال میں پھنسا لیتا تھا۔ جب 1947 میں آزادی ملی تو یہ امید تھی کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، لیکن آزادی کے بعد زرعی اصلاحات ناکام ہو گئے اور وڈیرے اپنے اثر و شوق سے مزدوروں پر کنٹرول رکھنے میں برقرار ہونے لگے۔ 1992 میں غلام مزدور نظام ایکٹ بنا جس نے تمام قرضے منسوخ کیے، نگرانی کی کمیٹیاں بنائی اور سزائیں طے کیے، لیکن سیاسی دباؤ اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ قانون صرف کاغذوں تک ہی محدود ہوا۔ گلوبل سلیوری انڈیکس 2021 کے ایک رپورٹ کے مطابق 2021 میں 23 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ متاثر تھے، جو کہ آج 2025 میں 23 لاکھ سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، جو کہ خاص طور پر کھیتی باڑی اور اینٹوں کے بٹوں میں ان کا تعداد زیادہ ہو گیا ہے۔ حالیہ سیلاب اور معاشی مسائلوں نے لوگوں کو مزید قرض لینے پر مجبور کیا
1980 की दिहाई में इसे इंसानी हकूक का बड़ा बहरान समझा गया था। इसके बाद 1988 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम था, जिसने इस निजाम को गैर आईनी कहा और 1992 में एक कानून बनाने का रास्ता खोला। 2000 की दिहाई में कुछ पेशे रफ्त हुई, जैसे सिंध हाई कोर्ट ने 207 हारियों को आजाद कराया, लेकिन मजमूई तौर पर नफाज बिल्कुल कमजोर रहा। 2022 के सैलाब के बाद केसेस सिंध में बढ़ गए और 2023 में 190 मजदूरों को फिर रिहा कराया गया। अब 2026 में ये मसला फिर भी जारी है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में ईंटों के भट्टों में हजारों मजदूर आज भी फंसे हुए हैं। सिंध के कई इलाकों में हिंदू और ईसाई 50 से 60% तक मुतासिर होते हैं, जो मजहबी और समाजी इम्तियाज को झेलते हैं। इस सिस्टम के अंदर खानदान नस्ल दर नस्ल गुलामी करते हैं और उनके बच्चे 8 साल से लेकर 10 साल की उम्र में काम शुरू कर देते हैं और 70% बच्चे इस वजह से स्कूल नहीं जा पाते। सर्वेज ये कहती हैं कि 83% भट्टों पर अक्सर बच्चे काम करते हैं, जो कि रोजाना 16 घंटे की मेहनत करते हैं, जो चोटें, सांस की बीमारियां और ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। और दूसरी जानिब सिंध के ज़राअत में तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे कपास, गंदम और गन्ने की काश्त में लगे हैं। अफगान मुहाजिर, हर पार के लोग और कमजोर गिरोह जो कि कानून तहफ़्फ़ुज़ की कमी की वजह से ज्यादा खतरे में होते हैं। इस गुलामाना निजाम के अंदर औरतें और बच्चियां सबसे ज्यादा मुशक्कत झेलती हैं। 35% जिनसी हिरासानी या ज्यादती का शिकार होती हैं और 99% लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 45 लाख से भी ज्यादा लोग इस निजाम के अंदर मुतासिर हैं, जिनमें 70% से भी ज्यादा बच्चे शामिल हैं। 2025 के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 1600 भट्टा मजदूरों को आजाद कराया गया, जिनमें से 17 से 34% जो कि जबरी मुशक्कत में शामिल थे। गुर्बत, नाखवानदगी और कुदरती आफात जैसे सैलाब इस मसले को मजीद बढ़ा देती हैं। पंजाब में 90% भट्टा मजदूर मुतासिर हैं, जबकि सिंध के ज़राई शोबे में इससे भी ज्यादा है। कमजोर समाजी निजाम और बदनुआनी इसे जारी रखते हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं, जैसे कि बांडिल लिबरेशन फ्रंट BLLF ने 1996 से लेकर आज तक 56,000 हारियों को आजाद कराया है। लेकिन मसला अब भी बहुत बड़ा है। गुलाम मजदूरी के पीछे मुजरिम वो जागीरदार और भट्टा मालिक हैं, जो मुसला गार्ड से मजदूरों को कंट्रोल करते हैं। भट्टा मालिक जो कि रिकॉर्ड में गड़बड़ करते हैं, कर्ज को बढ़ा देते हैं और बच्चों से काम लेते हैं। इस तमाम निजाम के अंदर एक अहम किरदार जमादार का भी होता है। जमादार जो कि इस निजाम के अंदर बहुत ही खास माना जाता है। जमादार लोगों को ले आकर इस सिस्टम के अंदर भर्ती करता है और फिर उनसे कमीशन लेता है और फिर उन मालिकान के कहने पर उन मजदूरों पर तशद्दुद भी करता है। पुलिस और सरकारी एहलकार रिश्वत लेकर अपनी आंखों को बंद रखते हैं। मुनज़्ज़म गैंग बच्चों को भीख या स्मगलिंग में इस्तेमाल करते हैं। 2024 में इंसानी स्मगलिंग के कानून सख्त हुए, लेकिन गुलाम मजदूर एक्ट के अंदर सजा आज तक किसी भी एक बंदे को नहीं हुई। इस्तेसाल का ढांचा ऐसा है कि कर्ज कभी खत्म नहीं हो पाता। छोटा कर्ज जो कि 100% से मल्टीप्लाई होता बढ़ता चला जाता है। कटौतियां और भी इसके अंदर जबरदस्ती शामिल हो जाती हैं। इश्तर इलाकों में मजदूरों को निचली जेलों में रखा जाता है। वो घर नहीं जा सकते, अदालत तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरी जानिब सिंध में वडेरे सरपरस्ती के नाम पर मजीद जुल्म करते हैं। ये सरमायादारी का एक गलत चेहरा है, जहाँ मुनाफे के लिए इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है। BLLF की सैयदा गुलाम फातिमा ने धमकियों के बावजूद 85,000 मजदूरों को आजाद कराया है। 85,000 से ज्यादा जो है ना मैंने मजदूरों को आजाद करा। जब हमें गोलियां लगी ना, तो जो सबसे पहले आए ना वो मजदूरी आए, भट्टा मजदूरी आए। अवाम, क्लास और GHRD अकलियतों की मदद करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO तरबियत और सर्विसेज फराम करता है। यूनिसेफ जो कि बच्चों के हकूक पर काम करता है। सबसे कमजोर गरीब तरीन वो देही लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई सपोर्ट नहीं रखते और जिनके बच्चे गुलामी में पैदा होते हैं। मुल्क भर में 2 करोड़ 50 लाख बच्चे जो कि स्कूल से बाहर होते हैं, जो कि रोजाना थकावट, चोटें और फेफड़ों की बीमारियां झेलते हैं। औरतें ज़हनी मसाइल और तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब हमारे कोई धनी न को साईं, कुंवारी छोकरी वो जमींदारों रा पेटरा औलाद था। तो अमा अतो जुल्म थे चुकियो। मैं 20-30 साल हूँ मैं कौम करियो। और इस निजाम के अंदर अक़लियतें जबरी मजहब तब्दीली और समाजी नफरत बर्दाश्त करती हैं। इनके असरात में शदीद गुर्बत, जिस्मानी और ज़हनी नुकसान, समाजी बाइकाट और सेहत की कमी है। सैलाबों ने बच्चों को कर्ज के बदले गिरवी रखने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में वो वडेरों के चरवाहे या उनके गेस्ट हाउस पर नौकर का काम करते रहते हैं। 2024 में 1310 मुकदमात चले। 2026 में कर्नाटक जैसी रिहाइयां और एक्स पर लाहौर का एक केस, जहां 13 साल की क्रिश्चियन लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये दिखाता है कि ये मसला आज भी जारी है
लेकिन आवाज उठ रही है। इस तमाम निजाम को खत्म करने के लिए सिफारिशात ये हैं: बेहतर मुआयने का निजाम बनाओ, मुतासरीन की दुरुस्त पहचान करो, एनजीओज के साथ मिलकर काम करो और आईएलओ कन्वेंशन 29 के मुताबिक तरबियत दो और बेरोजगार लोगों को रोजगार फराम करो ताकि ये चक्कर टूटे। पाकिस्तान में गुलाम मजदूरी एक गहरा और जारी मसला है जो तारीखी जागीरदारी, माशी मजबूरियों, समाजी इम्तियाज और कवानीन की कमजोरी और निफाज से जुड़ा हुआ है। ये निजाम लाखों लोगों को मुतासिर करता है, खास तौर पर बेजमीन मजदूरों, सिंध और पंजाब के अकलियतों और उनके खानदानों को जो कि नस्ल दर नस्ल गुलामी में पैदा होते रहते हैं। पेशगी कर सूद और जबर बढ़ाता है और लोगों से उजरत और आजादी और इंसाफ छीन लेता है। बच्चे खतरनाक कामों में लगे रहते हैं जिसकी वजह से वो तालीम से दूर रहते हैं, चोटों बीमारियों का शिकार होते हैं। औरतें जिनसी तशद्दुद और ज़हनी सदमा झेलती हैं। अकलियतें दौरे निजाम का सामना करती हैं। 1992 का कानून मौजूद है लेकिन बदनवानी, गैर फाल कमेटियाँ और बासर लोगों की सजाएं इसे जारी रखने से रोकती हैं। 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि पेशरफ्त नाकाफी है। ये बहरान अब भी जिंदा है, जैसे कि 2026 के केसेस दिखाते हैं। खात्मे के लिए फाल कमेटियाँ, सख्त मुआयना, मुतासरीन की मदद जो कि तालीम, तरबियत और माली इमदाद के जरिए की जाए। ज़रूरी इस्लाहत और मुजरिमों की जवाबदेही जरूरी है। आईएलओ और आलमी पार्टनर्स मदद कर सकती हैं। सिंध और पाकिस्तान भर में ये नाइंसाफी खत्म करना सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी है। हमदर्दी, सख्त कार्रवाई और सबकी जिद्दोजहद से इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है ताकि आने वाली नस्लें गुलामी से आजाद हों। तो दोस्तों, अब एक्शन लेने का वक्त है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।